Okay, very good evening, class. As we all know that we all are studying about why do we fall ill. Okay, in this chapter we discussed about disease. In this chapter we discussed about acute disease. Alright, in this chapter we also discussed what is chronic disease. Okay, in this chapter we already discussed what is infectious disease. Okay, in this chapter it means those things which is related to disease, those terms which is directly related to disease we all almost discussed, but today we will discuss few terms. Okay, few terms means uh, like I explained earlier classes that what is the meaning of pathology. Okay, normally function does not work okay, and about etiology. Okay, so like these terms today I will explain you what is the meaning of what is the meaning of pathogenesis. Patho नहीं है, pathogenesis. What is the meaning of epidemiology? All these terms are used in higher classes, not in class 10, but you should get to know so that you can raise your standard. Okay, you are in class 10th, it is okay, but if you know if you are in class 9, sorry, so you should raise your standard. uh, no matter that you know everything about syllabus. Okay, but you should also know beyond the syllabus so that you can give your competitive exams and clear out with 100%. Okay, so that you can get admission in out of UP and excellent colleges. So today I will tell you what is the diagnosis, what is the meaning of diagnosis. Okay, what is the meaning of incubation period. Okay, what is the meaning of prognosis. Okay, and what is the meaning of pathogenic adaptation. What is the meaning of pathogenic adaptation. What is the meaning of pathogen. It means all things related to basically disease. Okay, all the terms, all the words, all the definitions acquired main thing which is disease. Just because we are studying chapter disease and we have to discuss all the things from lower to higher related to disease. Okay, and today we will also get to know some founders name, some achievers who did achievers who have given many hard work so that we are here to understand easily. Okay, in next video I will explain all these things to you. Okay, listen. A wide range of organism. Okay, a wide range of organisms like bacteria. A wide range of organisms like bacteria, viruses, fungi, protozoans. Okay, fungi and protozoans. Okay, proto protozoans. Disease in man, such disease causing organisms are called pathogens. It means disease by bacteria, disease by disease by virus, disease by fungi, all disease by protozoans. Okay, all disease causing organism is called pathogen. Okay, so what is the meaning of pathogen? Pathogen means disease causing organism which cause disease like bacteria, virus, fungi, pathogen. All these organisms which cause disease, these organisms are called pathogen. Okay, and what pathogen does? Pathogen and can enter our body by various means. Okay, pathogen कैन एंटर्स इन आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स. वेरियस मीन्स मतलब क्या हो गया कि थ्रू माउथ के थ्रू चला गया. ये जो फूड रखा हुआ है आपका, इस फूड पे बैक्टीरिया बहुत सारा है तो फूड के थ्रू चला गया, पानी के थ्रू चला गया बॉडी के अंदर. ओके, एंटर इन आवर बॉडी वेरियस मीन्स उसके बाद क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई है,
यानी कि अगर एक बैक्टीरिया गया हुआ तो एक बैक्टीरिया तो बीमारी नहीं फैला सकता ना, तो ये क्या करेगा, अपनी जगह ढूंढेगा सेफ़ वाली, वहाँ पे जा करके ये अपने आप को डिवाइड करेगा। तो एक से क्या हो गए, हज़ारों बैक्टीरिया हो गए। हाँ, अब ये क्या करेंगे, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है, मॉर्फोलॉजिकल जो दिख रही है हमारे बाहर से, उसको क्या करेंगे, चेंज करते हैं, यानी कि काम दूसरी तरह करेंगे वो, मतलब बॉडी का पार्ट जो है वो फंक्शन प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। तो ये पैथोजन इस तरीके से जा कर के डिजीज़ फैलाते हैं कि अंदर गए, किसी भी तरीके से गए, फिर क्या हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, ठीक, ये जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, इसका मतलब क्या हो गया कि उठना बैठना, खाना पीना, सांस लेना छोड़ना, सर्कुलेशन होना, एक्सक्रीशन करना, स्वेटिंग निकलना, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना, सोचना और सेंसेशन, सारा कुछ जो नॉर्मल हो रहा था वो इम्प्रॉपर वे में होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है वो बैक्टीरिया जी गए हैं और अकेले गए थे, लेकिन ये अपनी कॉलोनी बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अफेक्ट होता है बॉडी को, ठीक है, क्योंकि केमिकल चेंज होने लगते हैं। ये जो सेल है आपके, जिसकी वजह से बॉडी की फॉर्मेशन हुई है, इस सेल की वजह से पूरी बॉडी बनी हुई है, तो यानी कि इस सेल में केमिकल चेंजेस आने लगते हैं बैक्टीरिया की वजह से, जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ पैथोजन, एक टर्म यूज़ किया जाता है, एमबीबीएस के एग्ज़ाम जब आप देंगे तो उसमें एक टर्म यूज़ किया जाएगा, या जो भी सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा या फिर एमबीबीएस की क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा, तो उसमें एक टर्म यूज़ किया जाएगा, इनोकुलम डोज। इनोकुलम डोज का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पैथोजन है, पैथोजन का मतलब क्या भी पढ़ा हमने कि बैक्टीरिया, ठीक है। What is the meaning of pathogen? Pathogen means bacteria. What is the meaning of pathogen? Pathogen means virus. What is the meaning of pathogen? Pathogen means fungi. It means all microbes which causes disease is called pathogen. Okay, if minimum amount of pathogen enters in your body, suppose that this is your body, okay, and a bacteria enter, one bacteria, two or three bacteria, then it can't cause disease, okay. uh, when it cause disease, when minimum amount of pathogen enters in your body, then disease causing starts, okay. This type of condition, that minimum amount of pathogen, this type of condition, that minimum amount of pathogen is called, this term is called inoculum dose, okay. Inoculum, inoculum, inoculum dose. Inoculum dose means what, minimum amount of pathogen, okay. When minimum amount of pathogen enters in your body, then your body get affected with any harm. Acha, now this is second term, incubation period. Second term is incubation period, okay. Now what is the meaning of incubation period? तो incubation period का मतलब क्या होता है कि suppose that आज जो है वो वेंसडे है, ठीक है, वेंसडे है, उसके बाद आएगा आपका संडे, सपोज दैट संडे 3 दिन बाद आया, वेंसडे को एक जो है बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला गया, ठीक है। तो वेंसडे के बाद जो ये थर्सडे है, ये जो फ्राइडे है और ये जो सैटरडे है, ठीक, ये 3 दिन में कुछ भी नहीं पता चला, बॉडी में बैक्टीरिया गया हुआ। संडे को क्या हो गया कि बॉडी में स्वेलिंग होने लगी, जिससे ये पता चला कि कोई चीज़ चली गई है आपकी बॉडी में और वो बॉडी को नुकसान पहुंचा रही। तो ये जो गैप है, ये जो 3 दिन का गैप आया हुआ है और संडे को शो हुआ है ना कि कोई बीमारी है या कुछ बैक्टीरिया चला गया है, तो ये जो टाइम गैप होता है एंट्री और शोइंग, यानी कि वेंसडे को गया था, यहाँ से बैक्टीरिया वेंसडे को अंदर गया था, ठीक है, वेंसडे को जाने के बाद और जो शो है संडे को शो हुआ, तो ये जो टाइम गैप है 4 दिन का, 3 दिन का जो भी है, इस गैप को क्या कहा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। कि एंट्री ऑफ पैथोजन, यानी कि पैथोजन जो था, माइक्रोब जो बैक्टीरिया था वो बॉडी में गया और शोइंग डिजीज़, जब तक वो दिखाई नहीं देगा तब तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। या इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है और 15 साल का भी हो सकता है। सपोज दैट सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ कि आपके पास बैक्टीरिया गया, ठीक है, अच्छा भाई बैक्टीरिया जी चले गए, अब क्या हुआ कि वो जो है वो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को सही से काम नहीं करने दे रहे हैं, ठीक। मॉर्निंग में गए और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को काम नहीं करने दे रहा है, जिसकी वजह से बाहर से हमको पता चलने लगा कि हम बीमार हैं। तो मॉर्निंग के बाद इवनिंग में पता चल गया, तो ये जो मॉर्निंग से इवनिंग का ड्यूरेशन था कि एंट्री और शोइंग, तो इस गैप को भी क्या कहा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है।
तो इंक्यूबेशन पीरियड क्लियर हो गया। ये टाइम गैप होता है कि एंट्री का, किसकी एंट्री का भाई, पैथोजन की एंट्री का। अच्छा, पैथोजन क्या है भाई, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या होता है, ये डिजीज़ फैलाता है। क्या होता है, ये माइक्रोब होता है। माइक्रोब का मतलब क्या हो गया कि जिसको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, ठीक। अच्छा, अब नाउ एक पॉइंट और यहाँ पे है कि पैथोजेंस हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। जिस बॉडी में गया हुआ है पैथोजन, जिस बॉडी में बैक्टीरिया गया हुआ है, उसकी बॉडी के एनवायरनमेंट को वो होस्ट मतलब कि उसी के साथ अडेप्ट कर लेता है अपने आप को, उसी के हिसाब से काम करता है, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाता है, इसीलिए बीमारी फैला पाता है, ठीक है। चलें, बाकी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंड कर दूँगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस